So here we're starting with chapter number 4 of maths part 1, exercise 4.2. It is related with increasing and decreasing function. Increasing and decreasing function. What is mean by that? I'll just explain with the diagram first, then I will start with the derivative wala part. What we have, suppose I'm writing the function, say any function. Okay, we have any function f of x. So here I'm writing as x square plus 2x minus say 1. Okay. If suppose I'll have to plot the graph, I'll have to plot the graph. Here I can take some few values. This is my 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. 4, 5 and 6. ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया, it's x square plus 2x minus 1. So suppose I'll have to plot the values. So here I am putting the values of x, here I will get the value of y. I'll make a chart. I'll take both the value, positive and negative. Suppose I'll take minus 5 to sub minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, let's substitute. पहले positive value 5. 5 का square 25, 5 2s are 10, 25 plus 10 35, minus 1 34. 4 substitute करेंगे, 4 का square 16, 4 2s are 8, 16 plus 8 24, minus 1 23. 3 डालेंगे, 3 का square 9, 3 2s are 6, 9 plus 6 15, 15 minus 1 14. 2 डालेंगे, 2 2s are 4, 4 4 plus 4 8 minus 1 7. 1 डालेंगे, 1 plus 2 3 minus 1. 2 डालेंगे, फिर 0 0 और 0. minus 1 का square 1. 2 into minus 1 is minus 2. Minus 2 minus 1 minus 3. 1 minus 3 which is minus 2. minus 2 डालेंगे, minus 2 का square 4. 2 into minus 2 minus 4 which is minus 1. minus 3 डालेंगे, minus 3 का square 9. 2 into minus 3 6 1 7. 9 minus 7 2. minus 4 का square 16. 2 into minus 4 8. 16 minus 8 8 minus 1 7. minus 5 का square 25. 5 का square 25. 10 and minus 1. 25 minus 10 15 minus 1 14. ठीक है, if I'll substitute these values in graph, minus 5 पे से we need 35, so 3 3 ले लेते, 3 6 9 12 15 18 21 27 30 एंड 34 थोड़ा ऊपर आएगा. ठीक है, minus 5 पे 14 है, minus 4 पे 7, minus 3 पे 2, minus 2 पे वैल्यू minus 1, it is going below. minus 3, तो minus 2 पे minus 1 somewhere यहाँ पे, minus 1 पे minus 2,
0 पे -1, 1 पे 2, 2 पे 7, 3 पे 14, 4 पे 23, 5 पे 34, 34 मतलब थोड़ा अप आ जाएगा, ठीक है। Now I'll plot the line, curve with free hand. ठीक है, तो this is my smooth curve. Now here I'll explain you what do you mean by increasing, what do you mean by decreasing. ध्यान सुनो, अगर तुम्हारा वैल्यू नीचे आ रहा है मीन्स यू आर गोइंग इन डाउनवर्ड ट्रेंड, तो यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर तुम्हारे पास पॉइंट्स अप जा रहा है तो यहाँ पे वैल्यूज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये ऐसा कर्व है जिसमें वैल्यू सबसे पहले डिक्रीज हो रही है देन इंक्रीज हो रही है। द वैल्यू इज डिक्रीजिंग एंड देन इट इज गोइंग अगेन इंक्रीजिंग। तो अगर क्वेश्चन बोला है कि डिक्रीजिंग, क्या बोला है, डिक्रीजिंग, वेयर द वैल्यू इज डिक्रीजिंग, तो -1 मतलब इस साइड वैल्यू सब डिक्रीज हो रही है, मतलब अपने को x की वो वैल्यू निकालनी है जिस पॉइंट से तुम्हारा फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज बोलूंगा तो x इज ग्रेटर देन -1, तो अगर x के लिए -1 से ग्रेटर है मतलब इस साइड, क्यों मैं -1 ही क्यों चूज करूं, बिकॉज -1 इज द मिनिमम पॉइंट एट विच द फंक्शन, अगर मैं राइट साइड जाऊंगा तो इट इज गोइंग अप, मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। अगर इसी पॉइंट से मैं अगर लेफ्ट साइड जाऊंगा इट इज गोइंग दिस साइड, मतलब यहां से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेस हो रही है। ठीक है, तो -1 is that point where the function, where the values of the function is minimum. If I'm interested in increasing, if I'm interested in increasing, तो increasing कब रहेगा, जब तुम्हारे पास फंक्शन ऊपर हो रहा है, मतलब अब जा रहा है। तो अगर मैं -1 जो मेरा मिनिमम पॉइंट है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1 पे, तो यहाँ पे अगर मैं राइट साइड जाऊंगा तो फंक्शन के जो पॉइंट सब ऊपर की तरफ मूव हो रहे हैं, तो मतलब इस पॉइंट के आगे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो आई वांट टू गेट दैट क्रिटिकल पॉइंट, दैट क्रिटिकल पॉइंट। सो दिस, यहाँ पे मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1। तो इसका मतलब इफ -1 के राइट साइड जाऊंगा, मतलब -1, 0, 1, 2, 3, आई टेक एनी वैल्यूज, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, मतलब इट इज मूविंग इन अपवर्ड ट्रेंड। तो अगर मैं 4 डालूंगा तो जो भी आंसर आएगा तो 5 वाला उससे ज्यादा ही आंसर आएगा, बिकॉज फंक्शन इज मूविंग इन इंक्रीजिंग ट्रेंड। 6 डालूंगा तो वैल्यूज और ज्यादा आएगी 5 से, मतलब एवरी टाइम फॉर द रिस्पेक्टिव वैल्यूज इफ आई एम मूविंग टुवर्ड्स राइट द वैल्यू विल गेट इंक्रीजेस। तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज होगा, कब होगा, when x, if you are choosing, is greater than -1, -1 के राइट साइड में कोई भी पॉइंट लो, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो वी वांट टू फाइंड दैट वैल्यूज। तो दिस इज द ग्राफिकल वे टू कैलकुलेट द वैल्यूज। ठीक है, नाउ आई विल शो यू द अदर वे टू कैलकुलेट, I'll show you the other way to calculate. So the other way is using differentiation. Without plotting the graph, I can get the values. So let's start increasing and decreasing. So what we have here for increasing, function, you have to take the condition that f dash of x is greater than 0. What I said, f dash of x, dash means derivative of the function, dash means derivative of the function. Increasing function means f dash of x is greater than 0. If I'm choosing decreasing function, so f dash of x is less than 0. So these are the two conditions for two categories, for increasing and for decreasing.
इंक्रीजिंग अगर रहेगा तो एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड डिक्रीजिंग रहेगा तो एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो। जैसे भी जो मैंने अभी सॉल्व किया यूजिंग ग्राफिकली, अभी उसको मैं डेरिवेटिव्स के थ्रू सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला था मुझे, आंसर क्या मिला, फंक्शन इंक्रीज कब होगा, एक्स की वैल्यू होगा ग्रेटर देन -1। इसका मतलब ये है कि -1 से ग्रेटर, मतलब 0 1 2 3 4 अगर तुम पुटअप करोगे तो फंक्शन का जो ग्राफ रहेगा इट विल बी मूविंग अपवर्ड ट्रेंड, इट विल बी मूविंग अपवर्ड, इट इज मूविंग इन अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, तो अभी इसको जो मैंने निकाला x इज ग्रेटर देन -1, नाउ आई विल सॉल्व यूजिंग माय डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला। स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 1, differentiate with respect to x, so it is f dash of x, 2x plus 2, x square का 2x and 2x का 2 बाहर आ जाएगा तो x का 1, 2 into 1 that is 2। मैंने बोला था फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व करो, फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए, तो यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू नहीं आती, यहाँ पे रेंज ऑफ आता है कि मतलब x की वैल्यू किस रेंज में फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, किस रेंज में डिक्रीजिंग रहेगा, एक सिंगल वैल्यू नहीं आएगी। तो एफ डैश ऑफ एक्स, तो इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या था कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इट मींस 2x plus 2 is greater than 0, it means 2x is greater than 2, वहां जाएगा तो -2, it means x is greater than -2 divided by 2, x is greater than 2 और 2 cancel which is -1, so we got the answer as x is greater than -1। और देखो यहाँ पे ग्राफिकली के थ्रू भी अपने को पता चला था कि x is greater than -1 रहेगा तो ही फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। तो दिस इज द शॉर्टकट और वे इजियर। ठीक है, सो दिस इज द वे टू फाइंड द रेंज ऑफ x। तो यहाँ पे तुम्हें फंक्शन या तो इंक्रीजिंग बोलेंगे या तो डिक्रीजिंग बोलेंगे, तो तुम्हें बस वो रेंज ऑफ x निकालने की x का क्या सीरीज हो सकता है। तो जैसा इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व किया वैसे डिक्रीजिंग के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जस्ट वहां पे जो ग्रेटर रहेगा वहां पे उसको लेस कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बस ये दो मेन क्राइटेरिया है फॉर द सेकंड एक्सरसाइज, इंक्रीजिंग फंक्शन f dash of x is greater than 0, for decreasing function f dash of x is less than 0। let's start। Test whether the following functions are increasing or decreasing। Now we need to check whether the function is increasing or decreasing। So let's start with the first question, f of x, it is given as x cube minus 6x square plus 12x minus 16, where x belongs to R। To check whether the function is increasing or decreasing, we will take derivative। We'll take derivative f dash of x, derivative बोलो x cube का 3x square, 6 बाहर आ जाएगा which is multiple x square का 2x, 12 बाहर आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 minus 16 का डेरिवेटिव 0। now it will be 3x square, 3x square minus 12x plus 12, this is my f dash of x। now I don't know whether it is greater than 0 है कि less than 0 है, तो अगर greater than 0 आया suppose, so I can write the function is increasing, और अगर less than 0 आया तो we can say the function is decreasing। so let's do it to check। how will you check? I'm taking 3 common, x square minus 4x plus 4, 3
4 का ऐसा फैक्टर कि ऐड करने पर -4 है, आई एम डूइंग फैक्टराइज। तो 4 का ऐसा फैक्टर कि ऐड करने पर -4 है, इट इज 2 into 2, तो x -2 और x -2 दोनों सेम ही ब्रैकेट आ गए, so that I can write x -2 the whole square। अब तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, ध्यान सुनो, एवरी स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, एज वी ऑल नो। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट अप करूंगा तो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 पुट अप करूंगा 2 का स्क्वायर इज 4, पॉजिटिव आएगा। और समझो तुमने माइनस नेगेटिव नंबर भी पुट अप किया, -2 या -1, तो वो भी तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो मतलब कोई भी स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, अदर देन सिर्फ x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट अप करूंगा तो उसका स्क्वायर 0 ही आएगा, बट 0 से ग्रेटर नहीं आएगा। तो x की वैल्यू 0 को छोड़ के बाकी सब x कोई भी पुट अप करो विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर दिस। समझो अगर x नहीं, x -1 हुआ तो अब ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब कोई भी स्क्वायर फंक्शन ग्रेटर देन 0 सिर्फ एक वैल्यू को छोड़ के। अब यहाँ पे वो वैल्यूज क्या रहेगी, फॉर दिस फंक्शन इट वाज x इज इक्वल टू 0। अब इस फंक्शन के लिए जो भी टर्म है ना, ये जो भी स्क्वायर टर्म है उसको 0 से इक्वेट करके देख लेने का कि अगर x -1 0 है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो 1 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू पुट अप करूं, कोई भी वैल्यू, जैसे अगर मैं इससे ग्रेटर पुट अप करूं, समझो 2 और 3, तो 2 पुट अप करूंगा, 2 - 1 इज 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4। तो जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव ही आएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। 1 से लेस पुट अप करूंगा, जैसे -1 -2, -1 विच इज -2 का स्क्वायर 4 आएगा, और -2 लेंगे तो -2 -1 -3 का स्क्वायर 9 आएगा। मतलब कोई भी वैल्यू पुट अप करो वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा, बस 1 नहीं पुट अप करना है। क्यों? बिकॉज 1 पुट अप करूंगा तो 1 - 1 उसका स्क्वायर 0, बट 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता। तो सिर्फ वो उस वैल्यू को छोड़ के, एक वैल्यू को छोड़ के बाकी सब पे फंक्शन क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। द सेम वे ओवर हियर, तो यहाँ भी तुम्हारे पास x -2 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से कुछ मतलब नहीं है। आई जस्ट वांट टू चेक वेदर द होल आंसर कम्स पॉजिटिव और कम्स नेगेटिव। तो यहाँ पे एवरी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वी कैन राइट दैट द होल फंक्शन is greater than 0, the whole thing is greater than 0 for all x belongs to R minus सिर्फ 2 के अलावा। क्यों 2 के अलावा? बिकॉज इफ आई पुट x एज माई 2, 2 - 2 विल बी 0, और मुझे 0 के इक्वल नहीं बल्कि 0 से ग्रेटर चाहिए। तो x की कोई भी वैल्यू पुट अप करूंगा, एनी मतलब कोई भी रियल नंबर, तो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मेरा रिजल्ट ये आया कि जो f डैश ऑफ x है वो 0 से बड़ा है, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 0 इट मींस आई कैन राइट दैट कि f of x is an increasing function, is an increasing function। ठीक है, now let's do the second question। f of x, x minus 1 upon x, where x belongs to R, x not equal to 0। The same thing, I'll find the derivative first, f dash of x। So f dash of x, एवरी टाइम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट करने के लिए तुम्हें डेरिवेटिव लेके ही फिर उसको चेक करना है कि वो 0 से बड़ा है कि छोटा। तो x का डेरिवेटिव इज 1, और 1 बाय x का डेरिवेटिव इज -1 बाय x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस। ओके, तो अगेन द सेम वे, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 1 बाय x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और 1 ऐड करेंगे तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब अगेन यहाँ पे ऑलवेज द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, बस एक को छोड़ के, कौन सी वैल्यूज, 0। बिकॉज अगर मैं 0 पुट अप कर दूंगा तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, लेकिन 1 अपॉन 0 वो डिफाइन नहीं है।
तो हम लोग 0 नहीं ले सकते। फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए और सब पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी भी चाहिए, तो ही वी कैन से इट्स इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे वैसे ऑलरेडी इन्होंने रीजन लिखा है, तुम लिख दोगे तो बेटर रहेगा। r-0 या ऐसा लिखो x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल टू 0। सेम वे में जैसा उन्होंने लिखा वैसा ही लिख दो यहाँ पे भी, ये भी लिख सकते हो, या x बिलोंग्स टू r कॉमा x नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मेरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 आ गया मतलब डेरिवेटिव, इट मीन्स आई कैन से दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, ठीक है। थर्ड, f of x which is 7 by x minus 3, x belongs to r and x not equal to 0। काइंड ऑफ सेम ही क्वेश्चन है, बस टर्म्स थोड़े आगे पीछे हो गए, थोड़े से चेंजेस हुए। अब चेक करना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। द सेम वे विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो f डैश ऑफ x, 7 बाय x में 7 बार आ जाएगा, 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और 3 का डेरिवेटिव विल बी 0। तो योर फाइनल आंसर इज माइनस 7 बाय एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। 7 बाय एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव टर्म, बिकॉज नीचे एक्स स्क्वायर है तो एवरी टाइम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, बस 0 के अलावा। तो 7 बाय एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0, बट बाहर माइनस आने से ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ जा रहा है। और अगर ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ रहा है मतलब द आंसर विल बी लेस देन 0, देन इन दैट केस द आंसर विल बी लेस देन 0, क्योंकि आंसर नेगेटिव हो गया ना बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। सो आई कैन से दैट दिस होल आंसर इज लेस देन 0 फॉर all x belongs to r and x not equal to 0. So f dash of x is less than 0. Agar f dash of x is less than 0, so we can say that the function is decreasing. That function is decreasing. Is decreasing for all x belongs to r and x not equal to 0. X not equal to 0. Okay. So this is my first question where we have to test whether the function is increasing or decreasing. Now question number 2 and 3, these two questions are remaining. 2 में बोला है find the values of x such that f of x is an increasing function, and question number 3 में find the values of x such that f of x is a decreasing function. तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन इंक्रीजिंग के हैं एंड द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन डिक्रीजिंग के लिए। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन और स्पेसिफाई कर दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो मैं एक्स की वैल्यूज निकालना, वैल्यूज मतलब रेंज निकालना है, एक स्पेसिफिक या 2 स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी, यू विल गेट अ रेंज फ्रॉम -1 टू -7 या -1 टू इंफिनिटी, काइंड ऑफ ऐसी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दे रहा हूँ वैल्यूज निकालने से पहले। इसमें तुम्हें 2 चीज पढ़ना है, ध्यान सुनो। दिस इज योर नंबर लाइन, this is x is equal to 0, 1 2 3 -1 -2 -3। और ये और भी आगे -4 -5 और भी बहुत सारी वैल्यूज है। ठीक है, if I am saying x is greater than 3, x is greater than 3 मतलब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, तो 3 से ग्रेटर इसका मतलब अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूं तो 3 से इंफिनिटी, दिस इज सेट फॉर्म में और दिस इज इनइक्वालिटी फॉर्म। If I'm saying x is greater than 3, what x is greater than मतलब 3 से ग्रेटर, 3 से ग्रेटर मतलब कहां तक, इधर का जो एंड पार्ट आता है वो होता है प्लस इंफिनिटी, और लेफ्ट साइड में जो लास्ट वैल्यू आती है दैट इज माइनस इंफिनिटी। सो इफ आई एम सेइंग x is greater than 3,
So you can write this, or else if you want to write in set form, you can write in this way also, that x belongs to 3 to infinity, 3 to infinity, round bracket, huh? Every time. If suppose I am saying x is less than -2, मतलब x की वैल्यू -2 से छोटी है, -2 से लेस है, it represent that x belongs to -2 से लेस, मतलब इस साइड की सब वैल्यू आएगी, मतलब -infinity तक, तो it will be -infinity to -2। क्या देखो, हम लोग जब इंफिनिटी लिखते तो ऑन द राइट साइड लिखते हैं, और जब -infinity लिखते तो ऑन द लेफ्ट साइड, बिकॉज -infinity लेफ्ट साइड में आता है और +infinity राइट साइड में आता है। तो ब्रैकेट का भी इंपॉर्टेंस है कि कौन सी वैल्यू पहले आ रही है, कौन सी वैल्यू बाद में। एंड एवरी टाइम यू हैव टू पुट राउंड ब्रैकेट ओनली, ऐसा ऐसा ब्रैकेट मत लगाना, इट इज रॉन्ग, राउंड ब्रैकेट ओनली, ठीक है। तो ये हुआ, या तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और एल्स यू कैन राइट इन सेट फॉर्म, दोनों वेज चलेगा। एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, दूसरा दूसरा और एक वैल्यूज बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square, if I'm saying x square is equal to 9, तो definitely I'll take square root, स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस और -3, ठीक है। बट इफ सपोज x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 बोला है, और अब सॉल्व करो, तो +-3 लिखना है, बट उसका वे ऑफ राइटिंग अलग होता है, उसका वे ऑफ राइटिंग अलग होता है। x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, मतलब तुम्हें x का जो स्क्वायर आएगा वो 9 से बड़ा होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट लूंगा तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 3, मतलब जो वैल्यू 3 से ग्रेटर रहेगी, मतलब 3 से ग्रेटर मतलब 3 भी पुट कर सकता हो, 4 भी पुट अप कर सकता हो, 5 भी पुट अप कर सकता हो, 6, तो 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू पुट अप करूंगा उसका स्क्वायर 9 से ग्रेटर आएगा। और दूसरा अगर समझो कि तुमने -3 लोगे, तो अगर मैं x ग्रेटर देन -3 लिखता, क्योंकि ग्रेटर है तो दोनों साइड मैंने ग्रेटर लगाया, तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर -3 पुट अप करूं, मतलब x इज ग्रेटर देन -3, तो -3 से ग्रेटर -2 आता है, -3 से ग्रेटर -2 आता है, तो अगर मैं -2 पुट अप करूं, -2 का स्क्वायर विच इज 4 होता है, विच इज ग्रेटर देन 9 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब फिर ये एक्सप्रेशन तो रॉन्ग हो गया। बट मुझे प्लस और माइनस दोनों लिखना है, कि मतलब क्योंकि स्क्वायर रूट ऑलवेज कम्स विद प्लस एंड माइनस, तो यहाँ पे रूल ये है, यहाँ पे रूल ये है कि whenever we are writing for the negatives value, for the negative values, so you have to change the sign of that greater than becomes less than, ये भी तुम्हें ध्यान देना, then it will be correct। तो इसका मतलब प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, बट आफ्टर राइटिंग ग्रेटर देन विल बी पॉजिटिव के लिए सेम रहेगा, बट फॉर नेगेटिव यू हैव टू चेंज। नाउ चेक, वेरीफाई हो रहा है क्या, x is less than -3 will satisfy this expression, we'll check it out। -3 से लेस बोला है, x is less than -3, -3 से लेस means -4 -5 and so on, I'm taking -4, तो अगर x के लिए -4 पुट अप करूंगा उसका स्क्वायर, यस 16 करेक्ट है, -5 लूंगा उसका स्क्वायर 25, अगेन करेक्ट है, यस, तो दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे तुम्हें मैंने एक चीज बताई, whenever you have an square number, x square आया, so when you take square root, positive के लिए you'll have to take the same operator, but for negative you have to change the operator, and the same thing happens for the less than also। Suppose if I'm writing here it was greater than, here it is less than, if it is less than, so I'll take square root लूंगा, x square is 16, square वहां जाएगा square root, तो 16 का square root +4 भी होगा and -4 भी होगा, so if I'm taking +4 तो x is less than, square वहां गया square root, तो x बचेगा which is less than 4, और अगर इस साइड जाएगा तो which will be -4, but what I said, तुम्हें इसका साइन चेंज करना पड़ेगा which is greater than -4, ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, बट फॉर पॉजिटिव इट विल बी द सेम, बट फॉर नेगेटिव यू हैव टू चेंज, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2,
find the values of x such that f of x is an increasing function. तो फर्स्ट फंक्शन एक क्यूबिक है और थर्ड फंक्शन भी क्यूबिक फंक्शन है, सिमिलर टाइप का ही है. सम भी वन सेम है काइंड ऑफ, दो टर्म तो सेम है, बस थर्ड टर्म में थोड़ा डिफरेंस दिया हुआ है. सो स्टार्ट कैसे करना है, वी विल राइट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1. ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले तुम्हें और एक मेथड बता दे रहा हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये भी पता होना चाहिए. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, आई विल शो यू. सपोज आई एम राइटिंग x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20. मुझे जो ये टर्म है ना, मुझे इस फॉर्म में करना है, मतलब x प्लस कोई भी टर्म बट उसका होल स्क्वायर होना चाहिए, x प्लस ए द होल स्क्वायर. अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है तो b जो भी रहा उसको लिख दो, बट मुझे कंप्लीट स्क्वायर में करना है. और ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसको फैक्टराइज कर सकता बट इट इज नॉट इन कंप्लीट स्क्वायर. तो कंप्लीट स्क्वायर का रूल है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स का टर्म दोनों अलग ले लो और प्लस 20 इसको अलग से लिखो. ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें थर्ड टर्म निकालना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको तुम्हें ऐड करना है. ये थर्ड टर्म निकालना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. वो थर्ड टर्म क्या रहता है, ध्यान से देखो. एक्स का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, हियर इट इज व्हाट 6, इट इज व्हाट 6. तो फॉर्मूला ये, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a लूं और x का कोएफिशिएंट b लूं, समझो a और b, ठीक है, a और b, या अगर a रहने दो, जैसे सिंपल सा इजी वे में बताता हूँ. x का कोएफिशिएंट जो भी है, a b छोड़ दो, सिर्फ समझो कि ये नंबर इंपॉर्टेंट. x का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, जो भी, उसका तुम्हें हाफ करना है एंड जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करना है. याद रखो, x का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसका तुम्हें हाफ करना है पहले, उसका आंसर जो आएगा उसका स्क्वायर करना है. तो विच इज हाफ एंड देन स्क्वायर, हाफ देन स्क्वायर. तो x का कोएफिशिएंट 6 है, 6 का हाफ करेंगे विच इज 3, 6/2 इज 3, और इसका स्क्वायर विच इज 9. तो तुम्हें 9 ऐड भी करना है और 9 लेस भी करना है. ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ऐड भी करना है और लेस भी करना है. तो ये जो तुम्हारा 3 टर्म्स मिलेगा, दैट विल बी द कंप्लीट होल स्क्वायर, दैट इज फिक्स. एंड 20 माइनस 9 विल बी 11. अभी दो होल स्क्वायर किसका है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x लिखेंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे, मतलब फर्स्ट वाले का स्क्वायर रूट और लास्ट वाले का स्क्वायर रूट, और बीच में सेकंड वाले का साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव. तो ये x प्लस 3 द होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करोगे तो यही 3 टर्म आएंगे. तो फाइनली वी गॉट द आंसर x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 11. So this is called as completing square method. मतलब you can make any quadratic equation in complete square form. So you just need to calculate the third term. दो x के टर्म दिए रहेंगे, you need to calculate third term. और वो थर्ड टर्म जो भी आंसर आएगा वो ऐड भी करेंगे एंड लेस भी करेंगे. यहाँ ऐड करेंगे और यहाँ पे लेस करेंगे. लेस इसलिए करते हैं कि जब तुम कोई चीज अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, नया ऐड कर रहे हो, तो तुम्हें उसको नलीफाई करने के लिए कैंसिल भी करना पड़ेगा. यू कांट ऐड ओनली, ऐड करने से इक्वेशन का मीनिंग चेंज हो जाएगा. यू हैव टू लेस दैट मच अमाउंट सो दैट द इक्वेशन इज स्टिल सेम. ठीक है, तो ये भी फॉर्मेट यूज करना है. आई विल शो यू ओवर हियर कैसे. मुझे फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स निकालना है. सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. f dash of x, 2 3 is 6, x square 15, x square is 2x, 36x, 36 bar x का derivative 1 and 1 is constant. f dash of x we got which is 6x square 30x plus 36. Now we'll write, since function is increasing, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग मींस f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0. इंक्रीजिंग बोला है, इंक्रीजिंग कंडीशन दिया और मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0. f डैश ऑफ x दैट यू गॉट डेरिवेटिव्स.
which is 6x square minus 30x plus 36. सबको 6 से डिवाइड करो, 6 5s and 6 6. Okay, now we'll simplify further. This is 3 term. We'll use quadratic, जैसा मैंने बताया, completing square method. कैसे करेंगे? x square minus 5x plus ऐड करना है टर्म. वो टर्म क्या रहेगा? x का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसका हाफ करेंगे. तो 5 है तो 5 का हाफ 5/2 ही रहेगा, क्योंकि डिवाइड होगा नहीं, 5 ऑड नंबर है, तो 5/2 5/2 और उसका स्क्वायर 25/4. अब आगे माइनस साइन है प्लस साइन है भूल जाओ, सिर्फ मुझे नंबर से मतलब है. तो प्लस 25/4 करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू ऐड, और जो 6 है उसके साथ लेस करना पड़ेगा 25/4. ठीक है. दिस 3 टर्म इज अ कंप्लीट स्क्वायर. किसका कंप्लीट स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, 25/4 का स्क्वायर रूट 5/2, और मिडल का साइन माइनस है, so it is x minus 5/2 the whole square. And 6 minus 25/4, 4 6 are 24, 24 minus 25 is minus 1/4, greater than 0. 1/4 को वहां ले लेंगे तो प्लस. I want to get the x की वैल्यू. अब स्क्वायर को वहां भेजेंगे स्क्वायर रूट, बट मैंने बताया कभी भी ग्रेटर देन रहा और स्क्वायर रूट निकालना है तो आंसर +1/2 भी आएगा और -1/2. तो इसके लिए दोनों केस लेना पड़ेगा. अगर x minus 5/2, सेम ऑपरेटर विथ पॉजिटिव 1/2, और सेम ऑपरेटर विथ नेगेटिव, नॉट सेम, चेंज करके, एंड नेगेटिव. सॉल्व फॉर x नाउ. 1 -5/2 वहां आ जाएगा तो +5/2. 5 + 1 6/2 which is greater than 3. ये मेरा फर्स्ट आंसर हुआ, that x is greater than 3. और -1/2 plus 5/2. 5 minus 1 4/2 which is 2. X is less than 2. X is greater than 3. X is less than 2. It means अगर x 3 से बड़ा है, it means x belongs to, अगर सेट फॉर्म में लिख रहा हो तो कहां से कहां रहेगा? It will be from greater than 3, मतलब 3 to infinity. और x is less than 2 मतलब 2 से छोटा है, बट कहां तक? -∞ तक. तो -∞ to 2. तो मेरे पास दो आंसर आ गए सेट फॉर्म में. तो अगर मैं इसका फंक्शन इन रेंज लिखूं तो x बिलोंग्स टू माई, अभी अगर इसको ऐसा नंबर लाइन में करूं, मेरे पास एक वैल्यूज है 2 और एक है -∞. तो एक रेंज 2 -∞ से 2 है और दूसरा रेंज 3 to ∞. यहां से यहाँ है. एक रेंज ये और एक रेंज ये, बीच में और का मतलब था यूनियन, मतलब ये भी चलेगा और वो भी चलेगा. तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू, अगर मैं प्रॉपर सेट फॉर्म में लिखूं तो सेट फॉर्म में क्या आएगा? -∞ से 2 ये पहला ब्रैकेट, यूनियन 3 to ∞ ये दूसरा ब्रैकेट. दैट्स इट. तो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग रहेगा, वो इस रेंज में और इस रेंज में रहेगा. तो यहाँ पे आई कैन राइट द आंसर देयर फॉर द f, दैट इज फंक्शन is increasing from x belongs to -∞ से 2 तक, एंड देन उसके बाद 3 से लेके ∞ तक फंक्शन इज इंक्रीजिंग. ठीक है. Now we have a second question where f of x is x square plus 2x minus 5. The same way we'll start. Increasing बोला है और find the values of x. Will differentiate with respect to x. f dash of x, x square का 2x and 2 times of x का 1. f dash of x is equal to 2x plus 2.
लीनियर फंक्शन है, बहुत इजी है. फंक्शन इज इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग बोला मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0. 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0. ये तो लीनियर है, एक ही बार में आ जाएगा. 2x इज ग्रेटर देन 2 को वहां भेज देंगे बिकॉज मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. डिवाइड बाय 2, x इज ग्रेटर देन -1. इसका मतलब x बिलोंग्स टू -1 से ग्रेटर है, मतलब -1 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ. फंक्शन इज इंक्रीजिंग. इसमें तो अच्छा डायरेक्ट आंसर है. देयरफॉर आंसर फंक्शन इज इंक्रीजिंग for x belongs to -1 to infinity. That's it. Done. This is your final step. Okay. This is easy. The second questions. Now we have the third one, which is again the same type as the first. F of x is equal to 2x cube minus 15x square plus, sorry, minus 144x minus 7. Okay, the same way we'll start. Function increasing बोला और find the range of x. अब थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं सम्स को. पहला स्टेप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. f dash of x डेरिवेटिव लेंगे 6x स्क्वायर 15x स्क्वायर का 2x 144. 15 2 is 30x. तो f dash of x फंक्शन इंक्रीजिंग बोला है. f dash of x is greater than 0. f dash of x is greater than 0. 6x square minus 30x minus 144 is greater than 0. 6 से डिवाइड करो. Is greater than 0. Again we'll use completing square method the same way. x square minus 5x. We'll add the third term. जो भी x का कोएफिशिएंट उसका हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे. 5 का हाफ 5/2 और उसका स्क्वायर 25/4 प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे. ठीक है. एंड नाउ दिस 3 टर्म इज अ होल स्क्वायर. किसका? x मिडिल का साइन एंड दिस इज 5/2. 24 4 is 96. 96 and 25 121. So minus 121/4 is greater than 0. x minus 5/2 the whole square. माइनस वहां जाएगा तो प्लस स्क्वायर रूट लेंगे, बट व्हेन विल टेक स्क्वायर रूट तो प्लस और माइनस दोनों आएगा. x minus 5/2 x minus 5/2 the whole square. तो होल स्क्वायर का भी मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो प्लस और माइनस दोनों 11/2. तो प्लस 11/2 के लिए विल टेक द सेम. और बट जो नेगेटिव रहेगा उसके लिए चेंज करना पड़ेगा. गेट योर आंसर. x is greater than 11/2 plus 5/2 6/2 which is 8. So x is greater than 8. or x is less than plus 5/2. -11 plus 5 minus 6
बाय 2 -3। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ x इज ग्रेटर देन 8, 8 से ग्रेटर मतलब 8 9 10, ग्रेटर मतलब टिल इंफिनिटी तक जाएंगे, तो x बिलोंग्स टू 8 टू इंफिनिटी। एक सेट ये रहेगा और दूसरा इंक्रीजिंग कब होगा, x इज लेस देन -3, -3 से लेस। तो अगर तुम्हारे पास ये -3 वैल्यूज है, इससे लेस इस सेट कहाँ तो जाएंगे, माइनस इंफिनिटी तक जाएंगे। तो x बिलोंग्स टू, बट माइनस इंफिनिटी पहले लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी से -3, इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे x, दोनों को कंबाइन करेंगे, पहले ये लिखेंगे नेगेटिव वाला माइनस वाला, माइनस इंफिनिटी से -3, दूसरा सेट यूनियन 8 टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे f इज इंक्रीजिंग, increasing from where to where, if x belongs to माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 8 to infinity. That's it. This is your all about the increasing function. The same thing will solve for decreasing function. Will solve for decreasing function. ठीक है, now we are solving the same decreasing function. जैसे इंक्रीजिंग में जब तुम्हारा ग्रेटर देन 0 रहता है हम लोग सेपरेटली सॉल्व करते थे, अगर डिक्रीजिंग में लेस देन 0, जरा यहाँ पे मैं तुम्हें एक नहीं दो स्टेप में बताऊंगा। एक्स स्क्वायर इज लेस देन सपोज 9 दिया है, तो x इज लेस देन 3 और x इज ग्रेटर देन -3, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों आएगा, लेस देन भी आएगा और ग्रेटर देन भी आएगा, बट नेगेटिव साइन के लिए। अब जरा एक चीज ध्यान से देखो, इसके आगे एक स्टेप और है, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखते हैं, दिस इज 0 एंड दिस इज 1 2 3, 1 2 3। तो x लेस देन 3 मतलब 3 से लेस है, 3 से लेस मतलब 3 2 1 और सो ऑन, और x -3 से ग्रेटर है मतलब -3 -2 -1 एंड सो ऑन, मतलब x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है और 3 से लेस है। तो जब हम लोग कंबाइन करते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, तो इसमें हम लोग जब ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं कि -3 लेस देन x लेस देन 3, -3 से ग्रेटर और 3 से लेस, दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो -3 और 3 के बीच में आएगा। तो तुम चाहो तो पहले ये स्टेप लिखना, उसके बाद नेगेटिव वैल्यू पहले लिखना और पॉजिटिव सेम वैल्यू बाद में, और बीच का एक टर्म वैसे ही रखना। तो मतलब तुम्हारे पास जब भी लेस देन आया, ग्रेटर देन आया तो उसको कंबाइन नहीं कर सकते, वो सेपरेट ही रहेगा, बट अगर लेस देन आया, लेस देन, दिस इज लेस देन आया, तो तुम्हें उसको दूसरे स्टेप में कंबाइन करके लिखना है, तो इट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू सॉल्व। आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन, तो समझ में आएगा और अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, question number 3, find the values of x such that f of x is decreasing function। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x क्यूब -15x स्क्वायर -144x -7। इवन थर्ड क्वेश्चन भी काइंड ऑफ सेम है, तो फर्स्ट आई एम सॉल्विंग, थर्ड विल बी एज अ प्रैक्टिस एज योर होमवर्क, और सेकंड भी मैं सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड देखो कैसे करना है, एंड दिस इज फॉर again the same values of x but for decreasing function। f of x is given as 2x cube 15x square 144x। देखा जाए तो ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है, 2x क्यूब -15x स्क्वायर -144x -7।
यही सेम क्वेश्चन जो मैंने पिछले इंक्रीजिंग में किया, यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन को डिक्रीजिंग में सॉल्व करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहले डिफरेंशिएट करेंगे, इज एफ डैश ऑफ एक्स, 2x³ का डेरिवेटिव, 15x² का डेरिवेटिव, 144x का डेरिवेटिव और 7 का 0, 2 3 6x², 30x minus 144. Since function is decreasing now, so its f dash of x is less than 0. ठीक है, f dash of x is less than 0. 6x² minus 30x less than 0. 6 से डिवाइड करेंगे, माइनस अगेन द सेम वे, x का जो भी कंप्लीट स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट 5, 5 का हाफ 5/2 विच इज 25/4 प्लस भी करेंगे, this is x minus 5/2. And 24 4 the 96 minus 25 121. ये वहां जाएगा तो पॉजिटिव, स्क्वायर वहां भेजेंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस 11/4 भी आएगा, और दूसरा -4 नहीं 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ना, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू 11/2 से लेस है, बट -11/2 से ग्रेटर है। ठीक है, तो दोनों को पहले फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, उसके बाद लास्ट में कंबाइन करूंगा मैं। तो x इज 11/2 प्लस 5/2, तो x इज लेस देन 11/2 प्लस 5/2, 16/2 which is 8. X is less than -11/2 plus 5/2, -11 plus 5, -6/2 which is -3. अब जरा ध्यान से सुनो, इन दोनों कंबाइन करना है, डिक्रीजिंग रहेगा तो ही दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। अगर और मैं यहाँ पे सेट के थ्रू बता रहा हूँ, समझो 0 है और यहाँ पे -3 और यहाँ पे 8 है, तो जो वैल्यूज चाहिए थे मैंने वो वैल्यूज तो ले लिए। वैल्यूज x का जो रेंज है -3 से, अरे सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देना है, मैंने रियलाइज नहीं किया यहाँ पे, इट इज, ठीक ऑपरेटर चेंज होता है, दिस इज ग्रेटर देन ग्रेटर, तो x इज ग्रेटर देन -3, मतलब -3 से बड़ा है, मतलब -3 के टूवर्ड दिस साइड, बट 8 से छोटा है, मतलब तुम्हारे पास जो x का रेंज रहेगा -3 से ग्रेटर और 8 से लेस, मतलब बेसिकली इन बिटवीन दीज टू, मतलब इतना ही आंसर आएगा। इसका मतलब अगर दोनों को मैं कंबाइन करूं तो -3 लेस देन x लेस देन 8। तो बस ये याद रखो, डिक्रीजिंग में तुम इसको कंबाइन करके एक सिंपल एक छोटे से सेट में लिख सकते हो, छोटे से इनइक्वालिटी में लिख सकते हो। सो हियर वी कैन राइट, या चाहो तो अगर इसको ब्रैकेट फॉर्म लिखना तो ऐसा लिखो, x बिलोंग्स टू -3, 8, तो यहाँ पे लिखेंगे f और फंक्शन इज decreasing for x belongs to -3, 8। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Now let's do the second. X raised to 4 minus 2x cube x raised to 4 minus 2x cube प्लस 1. अगेन यहाँ पे मुझे x का रेंज निकालना है द सेम टाइप. So we'll write the function is differentiate with respect to x. सबसे पहले we'll do this. It's 4x cube 6x square 1 का 0. Easy derivative. Now since function is decreasing, it means f dash of x is less than 0. 4x cube minus 6x square is less than 0. I can take x square common. 4x minus 6 is less than 0. x square को वहां भेजेंगे तो 0 upon x square is 0. बस कंडीशन लिख देना कि x square is always greater than 0. x square is always greater than 0. क्योंकि मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, x से डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि x पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी. लेकिन अगर x स्क्वायर है तो इट विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव. तो पॉजिटिव नंबर को ही मैंने ट्रांसफर किया. तो 4x माइनस 6 इज लेस देन 0. अब इसे सॉल्व करना है. तो 4x इज लेस देन 6. तो x इज लेस देन 6 बाय 4. लेस देन 6 बाय 4 सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 3 बाय 2. या तो इनइक्वालिटी में छोड़ दो या तो फिर अगर चाहो तो x 3 बाय 2 या तो फिर यू कैन राइट x बिलोंग्स टू 3 बाय 2 से छोटा है मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे. माइनस इन्फिनिटी से 3 बाय 2. So now we can write the statement that function is decreasing. Function is decreasing for x belongs to minus infinity से 3 by 2. ठीक है.